Good morning, dear students. In previous class, we discussed about the development of the male gametophyte. Okay, in previous class, the development of the male gametophyte पढ़े and in today's class, we will discuss about development of female gametophyte. Okay, development of female gametophyte. In previous class, we discussed about the development of male gametophyte, and in today we discuss about the development of female gametophyte. Okay. Then all of you know that the flower is the reproductive part of the angiospermic plant. आमମାନଙ୍କର reproductive ଯେମିତି organism ମାନଙ୍କର reproductive part ଥାଏ ସେମିତି plant ର reproductive part ହେଉଛି flower, जोटा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर सारिछे। ए जो फ्लावर ता रहला रिप्रोडक्टिव पार्ट, से रिप्रोडक्टिव पार्ट रो कोन थाए गोटे ए वाला स्ट्रक्चर करथि माने थिबो दिस लाइक स्ट्रक्चर। ओके, दिस इज नोन एज gynoecium or pistil. This is known as the gynoecium or the pistil. Okay, the female reproductive part of the angiospermic plant is known as the gynoecium or pistil. Okay, so first we will discuss about the structure of the pistil. Then next, second one, we discuss about the structure of ovule or structure of ovary, that is the structure of ovule, or that is known as your structure of ovary. Then we will discuss about that is known as your ovule, megasporogenesis, then next we will discuss about gametogenesis. Okay, these are the different steps by which we will discuss about the development of the female gametophyte. तो female gametophyte का development में हम first कौन दरकार structure of the pistil करना दरकार, then structure of the ovule करना दरकार, then megasporogenesis करना दरकार, then gametogenesis पढ़ना दरकार. तो first we will discuss about the structure of the pistil or structure of the gynoecium, जोटा कि ऑलरेडी हमने पढ़ी सारिछे. तो आउथरे कहि दउछि देखो, the structure of the gynoecium of the flower is like this. Okay, there is the last part is known as your ovary. This is known as your stigma. This part is known as your style. Okay, this is the reproductive part of the flower, that is known as your gynoecium or pistil. It is divisible into three parts, that is known as your stigma, style and ovary. Okay, inside the ovary the ovule is present, and from the ovule develop the female gamete. जेमिति हमर मेल gamete develop हेतिला सेमिति ovary रे ovule हेतै, ovule भितरु तमरा female gamete develop हेतै. Generally ए ovary रे a number of the leaf like structure थाए. This like structure, this leaf like structure is known as your carpels. This leaf like structure is known as your carpels. And in the carpels, a number of the ovules are present. ये carpels के तले हमने कौन था? Ovule था. Okay. So this is the structure of the pistil or structure of the gynoecium. तो gynoecium का हमने कौन लिखा? So it is the female reproductive part which is present in the flower of the angiosperm. It is divisible into three parts, that is known as the stigma, style and ovary. In case of ovary, a number of leaf-like
are present. That leaf-like structure is known as the carpels, and in carpels, a number of the ovules are present. Okay, so this is all about the structure of the pistil. Then next time we will the structure of the ovule. Structure of ovule. Ovule is generally present inside your ovary. Ovule ता हमर कोड थे ovary भीतर थे तो ovule structure केमिति थे देखा. This is known as the embryo sac. ताकि ताकि बोलते हैं integument covering थे. This like structure में है ovary. तो ovary का एक पार्ट को हुआ जैसे हम हाइलम. एक पार्ट को हुआ जैसे राफे. Okay. Then this part is known as the chalajal end. ये जो opening रहेगा ये opening को हुआ जैसे micropyle. एक पार्ट में भजे न्यूसेलस जो कवरिंग तक है कवरिंग को भजे इंटेगुमेंट. एक पार्ट में भजे फॉलिकल. ओके देन यहाँ पे कौन था एम्ब्रियो सेक था न्यूसेलस में था दैट इज नोन एज एम्ब्रियो सेक. एम्ब्रियो सेल भीतर कांते ऊपर को तीनटा सेल थिबो एमिति मझे तीनटा न्यूक्लियस थिबो गोटे सेल थिबो एठी एमिति गोटे सेल थिबो एठी गोटे सेल थिबो. ओके ए मझे सेल को माजे त हमर एक सेल. ओके ए डिसाइडेड जोड़ा रहला दैट इज नोन एज सिनर्जिस. दिस पार्ट इज नोन एज पोलर न्यूक्लियस. And this is known as your antipodal cells. Okay, this is the structure of a ovule. Just बोला आपने देखी थी this is the structure of a ovule. जो थे कि तमर total detail structure दिया है कि जोड़े थे तमर 2 marks का question पढ़े 2 marks का question है तमर structure of the ovule ऐसे से structure of the ovule दिया है कि structure of the ovule ने तमर मैंने पढ़ा कौन आएगा देखो. फर्स्ट वाला लोअर पार्ट इज नोन एज अ फॉलिकल. ओवल टा हमर कोन हेते गोटे जिंस रे अटैच रहते जो जिंस रे अटैच रहते दैट इज नोन एज अ प्लेसेंटा. तो तम मान को मते 1 मार्क क्वेश्चन आसीबो ओवल टा प्लेसेंटा सहित काहा द्वारा अटैच होते ओवल टा प्लेसेंटा सहित फॉलिकल द्वारा अटैच होते. तो लोअर मोस्ट पार्ट इज द फॉलिकल. फॉलिकल का देन ओवरिस ओवल सहित काहा द्वारा अटैच होते है हाइलम द्वारा अटैच होते हैं. जितने हाइलम रा हमर डेवलप हैला तो द वाइडर पर्सन रहबा. दिस वाइडर पर्सन इज नोन एज योर राफे. देन हम जो ओवरटा रहला ओवरटा के छोटे कवरिंग द्वारा कवर होते हैं. एडा उटे कवरिंग रहला एडा उटे कवरिंग रहला. दिस पार्ट इज नोन एज कवरिंग. दिस पार्ट इज नोन एज कवरिंग. ए कवरिंग का कहजे हमरा इंटेगुमेंट. Then a covering भीतर गोटे पार्ट रहइबो. दिस पार्ट इज नोन एज योर न्यूसेलस. ए न्यूसेलस का डेवलप है कि तमरा ए जिंस का क्लियर करता है दैट इज नोन एज द एम्ब्रियो सेक. तो डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट का मैंने कौन पढ़ा ये न्यूसेलस को एक एम्ब्रियो सेक का केमिति डेवलपमेंट होता है. तो जो एम्ब्रियो सेक है एम्ब्रियो सेक रे हम तीनटा जिंस चारटा जिंस रहे गोटे रहे तीनटा ऊपर का एंटीपोडल सेल्स मझे रहे तीनटा न्यूक्लियरी तोड़ दी साइड रे दीटा रहे सिनर्जिस आ मझे रहे एक सेल. तो देखो कौन रहला ए तीनटा को कहला तो हमरा एंटीपोडल सेल्स जोटा के ऊपर रख रहला. देन एटी गोटे मझे रहला दैट इज नोन एज एग सेल्स. एग सेल चारटी पाटे कौन रहला सिनर्जिस रहला. देन मझे कौन रहला पोलर न्यूक्लियर रहला. दिस पोलर न्यूक्लियर इज अदरवाइज नोन एज द सेकेंडरी न्यूक्लियस और सेकेंडरी सेल्स. This is otherwise known as your secondary cells or
सेकेंडरी न्यूक्लियस। देन देखो ये जो इंटेगुमेंट पूरा कवरिंग हेक अछि ऊपर पाखे किछ ओपनिंग नहीं तळ पाखे ओपनिंग अछि जो पाखे ओपनिंग नहीं ताको कहै छै चालाचार एज जो पाखे ओपनिंग अछि ताको कहै छै माइक्रोफाइलर एज। तो एथरु तमर किछ शॉर्ट क्वेश्चन आसे जेमिति कि तमर आसे the ovule is attached by which part that is known as the hilum. The ovule is attached to the placenta by the which part that is known as the follicle. Okay. Then ovule is covered by the fluid substances that is known as the integument. There is the opening part is present in the ovule that is known as the gas that is called as the micropyle, and the upper part of the micropyle is known as the Chalazar end. Okay, this is the total structure of the ovule. बुझी पाले समस्त total structure of the ovule आउ थोड़े कोई तो देखो ovule ता हमर कोनी थे फर्स्ट गोटे प्लासेंटा सेल अटैच थे प्लासेंटा सेल अटैच होबा को अछि follicle, then follicle ता हमर ovule सेल अटैच थे that is known as the hilum. हाइलम ता जते बेले ऊपर को बढ़ी थाए सेते जो वाइडर पर्सन थाए से वाइडर पर्सन को कह जे राफे। देन हम जो ओपन रहला ओपन किछ द्वारा कवर थाए से कवरिंग को हम कह जे इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट रे तळ पाखरे गोटे ओपनिंग थाए से ओपनिंग को कह जे माइक्रोफाइल ऊपर पाख को कह जे चालाचार एड भीतर गोटे सेल थाए ताको कह जे न्यूसेलस। न्यूसेलस भीतर आमर थाए एम्ब्रियोसाइट। एम्ब्रियोसाइट रे आमर 7टा सेल एवं 8टा न्यूक्लियाई थाए। केमिति 7टा सेल एवं 8टा न्यूक्लियाई थाए देखो ए तीनटा हैला गोटे सेल 1 2 3 4 5 6 एंड 7 तो केटा हैला 7टा सेल हैला। देन न्यूक्लियस 1 2 3 4 5 6 7 8 8टा न्यूक्लियाई हैला हैला। तो जो चिंता रहला ऊपर पाटे चिंता जो रहला दैट इज नोन एज एंटीपोलर सेल्स। मझे जोटा रहला दैट इज नोन एज पोलर न्यूक्लियाई। तळे जो दी साइड रहला दैट इज नोन एज सिनर्जिड्स। मझे जोटा रहला दैट इज नोन एज एक्सेल। ओके दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ovule. ओके देन वी डिस्कस अबाउट द मेगास्पोरोजेनेसिस। तापर स्टेप कोन थिला मेगास्पोरोजेनेसिस थिला। मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़िया पूर्व मु तमन किछ कोड कहि देछि से कोडटा मन रखिबा। तमन फर्स्ट कोड होछि यू आर डिवाइडेड इनटू बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी का बॉयज एंड गर्ल्स बॉयज को पाई कोड होछि 24 एंड गर्ल्स को पाई कोड होछि 27। इट इज द फर्स्ट कोड। बॉयज को पाई फर्स्ट कोड होछि 24 गर्ल्स को पाई फर्स्ट कोड होछि 27। ए जिंसला मन रखिबा। Then next is your megasporogenesis. Megasporogenesis. What is megasporogenesis? The process of development of megaspore from the megaspore mother cell is known as your megasporogenesis. Megaspore mother cell मेगास्पोर फॉर्मेशन हेगा को जो प्रोसेस रे फॉर्मेशन हेला दैट प्रोसेस इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। ओके मेगास्पोर मदर सेल रो मेगास्पोर दा को प्रोसेस रे फॉर्मेशन होची दैट इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। तो तम जो दैट इज सिमिलर इज माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। फीमेल गैमेट मेल गैमेटोफाइट हेले सेदा कहजबा माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। जते बेले फीमेल गैमेटोफाइट हेजिबो ताको कहजबा मेगा गैमेटोजेनेसिस। तो प्रोसेस प्राय तो समान। जदि तुम माने माइक्रो गैमेटोजेनेसिस ता भले भाबरे वीडियो देखिथिबा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ता भले भाबरे वीडियो देखिथिबा देन मेगास्पोरोजेनेसिस मध्ये भले भाबरे बुझी पारिबो। तो जनरली मेगास्पोरोजेनेसिस ता हमर मेगास्पोर ता कोठु डेवलप हेतै न्यूसेलस टू डेवलप हेतै। न्यूसेलस ता कहली कोठि थाए न्यूसेलस ता ओपन मझिरे थाए गोटे पार्ट कहली एमटी टाइप रो पार्ट। तो एमटी टाइप ऑफ न्यूसेलस ता फर्स्ट गोटे मझिरे थिबो एटे नंबर ऑफ द सेल्स थिबो दैट इज नोन एज द न्यूसेलस। ओके देन न्यूसेलस रो गोटे सेल तमरा
आर्किस्पोरियल इनिशियल। तो बुझिपार समस्ते न्यूसेलस रो गोटे पार्ट अधिका प्रोमिनेंट देखा न्यूसेलस भीतर जो सेल गुड़ाक अच्छी तार गोटे पार्ट अधिका प्रोमिनेंट देखा जो पार्ट अधिका प्रोमिनेंट देखा से पार्ट को आम कह कौन आर्किस्पोरियल इनिशियल। तापर कौन हम दिस आर्किस्पोरियल इनिशियल डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स गोटे बाहर पाक रहिबो आ गोटे भीतर पाक रहिबो। बाहर पाक जोटा रहिला दैट इज नोन एज प्राइमरी पेरिटल सेल and भीतर पाक जोटा रहिला दैट इज नोन एज प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यू। ओके गोटे रहिला प्राइमरी पेरिटल सेल आ गोटे रहिला प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यू। देन जो हमार प्राइमरी पेरिटल सेल रहिला से कोन करबो कवरिंग तैयार करबो बहुत बड़े सेल तैयार करबो। प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यू ता कोन तैयार करबो मेगास्पोर मदर सेल तैयार करबो। माइटोटिक डिवीजन में कोन तैयार करबो मेगास्पोर मदर सेल। तो प्राइमरी पेरिटल सेल ता हमर कोन तैयार करला गोटे कवरिंग तैयार करला एंड प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यू जोटा रहिला दैट फॉर्म्स द मेगास्पोर मदर सेल। देन दिस मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो रिडक्शन डिवीजन। मु ऑलरेडी कह साइछि रिडक्शन डिवीजन माने कोन रिडक्शन डिवीजन माने होछि त मानकर मेयोसिस और अर्ध विभाजन। तो रिडक्शन डिवीजन में हम केटा सेल तैयार होते चारटा सेल तैयार होते बुझी पारछ। रिडक्शन डिवीजन में हमरा चारटा सेल तैयार होला मेयोसिस से कि चारटा सेल तैयार होला। जो तीनटा हमर थिबो कोवर्ट को माइक्रोफाइलर एंड आडू थिबो चारटा सेल तैयार होला दैट इज नोन एज मेगास्पोर। ए चारटा मेगास्पोर मधुरो जो तीनटा माइक्रोफाइलर होचनी से माने कोन हिजबे डिजेनरेट हिजबे मींस नष्ट हो हिजबे आ कोन रहबो आ गोटिए सेल रहबो जोटा कि हमरा एक्टिव करबो फीमेल गैमेट तैयार हे पारे बुझि पारला। तो ए टोटल प्रोसेस को हम कहा जाए मेगास्पोरोजेनेसिस। तो मेगास्पोरोजेनेसिस कोन हम पढिले मेगास्पोर मदर सेल का डिवीजन हे कि मेगास्पोर फॉर्मेशन करबा को जो प्रोसेस रे मेगास्पोर मदर सेल का डिवीजन है कि मेगास्पोर तैयारी कला से प्रोसेस को हम कहा जाए मेगास्पोरोजेनेसिस। ओके दैट प्रोसेस इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। तापर कोन हम ए मेगास्पोरोजेनेसिस रे जनरली हमरा न्यूसेलस तैयारी होते ए न्यूसेलस भीतर कोन थे बहुत बड़े सेल थे बहुत बड़े सेल रहला। प्रति सेल गोटे सेल हम कोन देखबो अधिका प्रोमिनेंट देखबो से प्रोमिनेंट सेल को कहला आर्किस्पोरियल इनिशियल। से आर्किस्पोरियल इनिशियल का डिवाइडेड हबो डिवाइडेड कि बाहर का गोटे सेल रहबो भीतर का गोटे सेल रहबो। बाहर का जो सेल रहला ताको कहला प्राइमरी पेरिटल सेल भीतर का जो सेल रहला दैट इज नोन एज प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यू। देन प्राइमरी पेरिटल सेल कोन करबो कवरिंग तैयार करबो ए सेल कवरिंग ए गोटे सेल गोटा को तैयार करबो। देन प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यू डिवीजन हे कोन तैयार करबो मेगास्पोर मदर सेल तैयार करबो। ओके प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यू डिवीजन हे कोन तैयार करला मेगास्पोर मदर सेल तैयार करला। देन मेगास्पोर मदर सेल का कोन हम रिडक्शन डिवीजन हबो। रिडक्शन डिवीजन ले कोन करबो तो तमने देखो मेयोसिस हबो तो चारटा मेगास्पोर तैयार करबो। ई चारटा मेगास्पोर आडको हमर तीनटा जो तीनटा माइक्रोफाइलर एंड आडको थिबे से माने कोन करबे डिजेनरेट हिजबे माने रिमूव हिजबे आ गोटे केवल हबो से गोटे मेगास्पोरटा फॉर डेवलपमेंट हेकी कोन तैयार करबो फीमेल गैमेट तैयार करबो। बुझि पारले कि मेगास्पोरोजेनेसिस। देन नेक्स्ट इज योर मेगागैमेटोजेनेसिस। देन नेक्स्ट हम पढ़िबा
गैमेटोजेनेसिस। तो मेगा गैमेटोजेनेसिस कौन मेगास्पोरु गैमेट फॉर्मेशन हेबाको दैट प्रोसेस इज नोन एज मेगा गैमेटोजेनेसिस। मेगास्पोरु आमर गैमेट फॉर्मेशन हेबाको जो प्रोसेस रे मेगास्पोरु गैमेट फॉर्मेशन हैला सेही प्रोसेस को आमर कहा जाए मेगा गैमेटोजेनेसिस। तो मेगा गैमेटोजेनेसिस रा हम प्रोसेस पढिबा आमे जेतले मेगा गैमेटोजेनेसिस रा गोटे स्पोर केवल अछि प्रति स्पोरटा चारटा स्पोर तो जेटा रिजनेट कर देछि गोटे स्पोर थिला जोटा कि हम गैमेट फॉर्मेशन करबा बोली मु कहथिनि कि प्रीवियस हमर डायग्राम रे। तो देखो जो गैमेटटा रहला से कोन थिबो 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन थिबो 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन हबो 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन रे केटा सेल न्यूक्लियस ले हबो केटा न्यूक्लियस से खाली 8टा न्यूक्लियस ले लेबो केमति ले लेबो देखो माइटोटिक डिवीजन माने माइटोसिस। तो गोटे न्यूक्लियस रहला केमति 8टा सेल ले लेबो तमान को देखौची गोटे न्यूक्लियस रहला गोटे न्यूक्लियस ता फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन गला गोटे न्यूक्लियस ता फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन गला से कोन करबो दीटा न्यूक्लियस तैयार करबो पुनी प्रति जो दीटा सेल के देला से माने कोन करिवे पुनी आउट माइटोटिक डिवीजन में ये गोटे माइटोटिक डिवीजन कले ये दीटा सेल तैयार करबो ये माइटोटिक डिवीजन कले ये दीटा सेल तैयार करबो दिस इज नोन एज सेकंड माइटोटिक डिवीजन। तापर कोन हो ए सेल दा दीटा सेल तैयार करबो ए सेल दा दीटा सेल तैयार करबो ए सेल दा दीटा सेल तैयार करबो देन ए नेक्स्ट सेल मध्य दीटा सेल तैयार करबो एडा होची थर्ड माइटोटिक डिवीजन। तो तीनटा लेवल माइटोसिस हला हमर गोटे सेल रो केटा हला 1 2 3 4 5 6 7 8 आठटा सेल के देला समस्त देखि पाउछ देखो केते आठटा सेल के देला फर्स्ट गोटे न्यूक्लियस थिला गोटे न्यूक्लियस रो माइटोटिक डिवीजन है कि दीटा न्यूक्लियस हला दीटा सेल के देला दीटा सेल तारे माइटोटिक डिवीजन है कि चारटा सेल के देला चारटा सेल रो माइटोटिक डिवीजन है कि आठटा सेल के देला बुझि पाउछ। तो दिस इज नोन एज 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन। तो तीनटा माइटोटिक डिवीजन रे हमर कोन हैला 8टा सेल तैयार हैला 1 2 3 4 5 6 7 8 हैला 8टा सेल तैयार हैला ई जो 8टा सेल के हैला 8टा सेल रो किबा न्यूक्लियस के फर्स्ट 8टा न्यूक्लियस तैयार हैला ए 8टा न्यूक्लियस रो कोन हबो से माने 3टा न्यूक्लियस ऊपर ऊपर होइथिबे आ गोटे न्यूक्लियस से माने सेंटर रे छाडले तळे जो 4टा न्यूक्लियस देला से जो 3टा न्यूक्लियस तळे होइथिबे आ गोटे न्यूक्लियस से माने ऊपर ऊपर छाडले बुझि पाछ। तापर तार कोन हबो सेल के देबा फॉर्मेशन हो या दीटा सेल ए दीटा से गोटे सेल एथिरे 3टा सेल के देला बुझि पाला कोन हैला फर्स्ट कोन हैला गोटे सेल गोटे न्यूक्लियस हैला से न्यूक्लियस का 3टा सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन हैला 3टा सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन है कि 8टा न्यूक्लियस तैयार कला 8टा न्यूक्लियस रो 3टा न्यूक्लियस ऊपर रहले गोटे न्यूक्लियस सेंटर को पड़े आसीला सेमति तळे जो 4टा रहला ए 4टा 3टा न्यूक्लियस सेंटर रहले गोटे सेंटर को पड़े आसीला देन प्रति न्यूक्लियस चलिबा के सेल फॉर्मेशन होला। तो हमर केटा सेल केटा न्यूक्लियस तैयार हैला दैट इज द 7टा सेल एवं 8टा न्यूक्लियस तैयार हैला। ए ऊपर बाकी जोडे रहला दैट इज नोन एज एंटीपोडल सेल्स एडी जोडे रहला दैट इज नोन एज पोलर न्यूक्लियाई मध्य जोडे रहला दैट इज नोन एज एक्स सेल्स आदि साइड में जोडे रहला दैट इज नोन एज सिग्नल्स एवं ए टोटल जका हमर कोन कहै छै एम्ब्रियो सेल बोली वह जाय। तो आमर तम जो रहला फिश टिक व डायनासोर रो ए एम्ब्रियो सेल के केमिति डेवलपमेंट होछि ए
ये टोटल प्रोसेस टाको पढ़िबा को कह जाय डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट ओके तो हम माने गोटे कोड कहथिली देन योर सेकंड कोड इज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स बॉयज मान में कोड होची 25 एंड गर्ल्स मान में कोड होची 28 मतलब जब बॉयज मान में सेकंड कोड होची 25 गर्ल्स मान में सेकंड कोड होची 28 so this is the total process of the development of the female gametophyte तो female gametophyte हमें कौन-कौन पढ़िले फर्स्ट पढ़िले हमें गाइनोसियम और पिस्टिल ओके फर्स्ट हमें पढ़िले गाइनोसियम और पिस्टिल गाइनोसियम हमें कौन पढ़िले गाइनोसियम is the female reproductive part it is divisible into three parts that is uterus stigma style and ovary एथरे हमर बहुत होले कार्पेल्स थाए कार्पेल्स भितरे ओव्यूल्स थाए देन सेकंड हम पढ़िले स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल ओव्यूल में कोन पढ़िले प्लासेंटा विषय पढ़िले हाइलम विषय पढ़िले देन फॉलिकल विषय पढ़िले ओके प्लासेंटा हाइलम फॉलिकल देन तार पाखरे प्लासेंटा जोटा थाए तळ पाखरे थाए प्लासेंटा सहित हमर फॉलिकल अटैच थाए फॉलिकल सहित ओवरी का हाइलम पर अटैच थाए हाइलम ऊपर को डाके थाए डायग्राम देखि तमाने बुझि परिबो ओके उ तमाने नोट्स पठै देबे तमाने से अनुसार बुझिबो हाइलम ऊपर को डाके थिला देन ओवरी भीतर हमर ओव्यूल का हमर कवरिंग हेतिला तीनटा लेयर तो तीनटा लेयर दैट इज नोन एज इंटेगुमेंट कहतला इंटेगुमेंट का तळ पाखरे गोटे ओपनिंग थिला से ओपनिंग को माइक्रोपाइल कहतला इंटेगुमेंट रो अपर पाखरे गोटे कवरिंग थिला पूरा फुल कवरिंग थिला दैट इज नोन एज चलाचल एंड ताके चलाचल एंड कहतला देन भीतर पाखरे गोटे सेल थिला दैट इज नोन एज न्यूक्लियस कह जाउतला न्यूक्लियस भीतर हमर कोन थिला एम्ब्रियो सेल थिला एम्ब्रियो सेल रे जोटा कि हमर एंटी थिला एंटीकोडल सेल थिला पोलर न्यूक्लियस थिला एक सेल थिला सिनेप्टिक्स थिला देन थर्ड हमने कौन पढ़े मेगास्पोरोजेनेसिस ओके मेगास्पोरोजेनेसिस का हमने कौन पढ़ले मेगास्पोरोजेनेसिस रे हमने पढ़िथिले मेगास्पोर मदर सेल रो मेगास्पोर तयारी हेबाकू दैट प्रोसेस इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस तो सेथरे कौन होतला फास्ट गोटे म्यूसेलस रोतला म्यूसेलस भीतर सेल रोतला से सेल रे गोटे पार्ट हमको बहुत प्रोमिनेंट देखा होतला से प्रोमिनेंट पार्ट को हमको कौन कहा होतला आर्किस्पोडियल इनिशियल देन आर्किस्पोडियल इनिशियल का डिवाइडेड है कि बीटा सेल तयारी करतला गोटे तयारी करतला आउटर पेरिएटल सेल आ गोटे तयारी करतला प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यू पेरिएटल सेल का देन डिवीजन है कि सेल कवरिंग तयारी करतला देन स्पोरोजेनस टिश्यू का डिवीजन है कि मेगास्पोर मदर सेल तयारी करतला देन मेगास्पोर मदर सेल का रिडक्शन डिवीजन है कि मेगास्पोर तयारी करतला ओके देन आगे पढ़िले मेगा गैमेटोजेनेसिस मतलब ए प्रोसेस रे मेगास्पोर जो चारटा मेगास्पोर तयारी होतला से चारटा मेगास्पोर का हमर कोन होतला जो तीनटा माइक्रोपाइलर एंड आकुतला से तीनटा डिजनरेट कर जोतला जोटा गोटे केमर थिला सेटा कोन होतला सरफाइव करके रहतला जोटा कि परे गैमेट तयारी करतला तो मेगा गैमेटोजेनेसिस कोन ए जो रहिला हमर स्पोर ए स्पोर मेगा स्पोर गैमेट फॉर्मेशन हेबा प्रोसेस को मेगा गैमेटोजेनेसिस को जोतला तो फर्स्ट कोन होतला गोटे गैमेट गोटे स्पोर तयारी होतला देन से स्पोर दा तीनटा सक्सेसिव डिवीजन होतला नेक्स्ट एकटा माइटोटिक डिवीजन होतला माइटोटिक डिवीजन है आठटा न्यूक्लियाई तयारी करतला चारटा न्यूक्लियाई अपर पाखरे होतला और चारटा न्यूक्लियाई लोअर पाखरे होतला जो चारटा न्यूक्लियाई अपर पाखरे होतला से जो तीनटा न्यूक्लियाई अपर पाखरे होके गोटे से माने सेंटर को दे देबे जो चारटा न्यूक्लियाई तळ पाखरे होतला से चारटा न्यूक्लियाई रो तमन कोन होगा तीनटा तळ पाखरे रहबो आ गोटे सेंटर को पड़े जिवो ओके देन ता चारटा सेल सेल होबो तो तमने जो क्वेश्चन आसे गोटे एम्ब्रियो सेल रे हाउ मेनी सेल्स एंड हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट in an embryo cell your answer should be
in an embryo sac देखो कितना सेल 1 2 3 एटा बोलेला 4 5 6 7 सातटा सेल के लिए किंतु कितना न्यूक्लियस रहला देखो 1 2 3 4 5 6 गोटे जो सेकेंडरी किबा पोलर न्यूक्लियस रहला से कोन रहला दीटा न्यूक्लियस रहला तो कितना हला 8 न्यूक्लियस तैयारी होला तो एटा गोटे क्वेश्चन पड़िबो then question I said देखो तम सब गुडा का n नंबर ऑफ द क्रोमोसोम एटे n नंबर क्रोमोसोम रहबा एटे n नंबर क्रोमोसोम रहबा एटे n नंबर क्रोमोसोम रहबा एटे n नंबर क्रोमोसोम एटे n नंबर क्रोमोसोम एटे किंतु एटे रहबा 2n नंबर ऑफ द क्रोमोसोम सो सदाबे मने रखिबो पोलर न्यूक्लियस ऑलवेज डिप्लॉयड इन नेचर आउ जे कोन से सेल पड़ला एक सेल हो एंटीपोडल सेल्स हो सिनोप्टिक्स हो से माने हैप्लॉइड इन नेचर एटा होछ हमर डिप्लॉयड आउ जे कोन सेंस रहला दैट इज नोन एज हैप्लॉइड डिप्लॉयड माने होछि जे 2n नंबर ऑफ द क्रोमोसोम कंटेन करबा दैट इज नोन एज डिप्लॉयड आउ जे n नंबर ऑफ द क्रोमोसोम कंटेन करबा दैट इज नोन एज हैप्लॉइड ओके तो तुम मानकर बेले बेले कोते क्वेश्चन आसे एग्जाम में देखो कर होछि जति गोटे प्लांट रा क्रोमोसोम नंबर होछि 28 गोटे प्लांट रा क्रोमोसोम नंबर 28 then how many nuclei are present in polar nuclei में कितने क्रोमोसोम नंबर थिबे तो केम आंसर का करबो तो आम बॉडी भितर तुम माने जानिछ जदि क्रोमोसोम नंबर हैला क्रोमोसोम इज ऑलवेज प्रेजेंट इन डिप्लॉयड स्टेट डिप्लॉयड स्टेट माने तुम माने आखि बंद करके लिखिबो 2n is equal to 28 ओके देन n केते हबो n is equal to 14 तो जते बेले मन पछा गला पोलर न्यूक्लियस केते रहइबो पोलर न्यूक्लियस कोन कहबे 2n नंबर ऑफ द क्रोमोसोम रहइबो तो पोलर न्यूक्लियस रे हम 2n हेले कोन हबो 2 into n 14 into 2 equal to 28 जति पछला सिनोप्टिक्स में केते रहइबो क्रोमोसोम तो तुम मानकर केते आंसर हबो सिनोप्टिक्स से देखो सिनोप्टिक्स केते होतली n और n तो 14 जदि पछला एक्सेल केते रहइबो एक्सेल आम रहइबो 7 सॉरी 14 जदि पछला एंटीपोडल सेल केते रहइबो एंटीपोडल सेल में मध्य 14 रहइबो कम 14 रहइबो बिकॉज़ दे आर हैप्लॉइड दे आर कंटेन ओनली n नंबर ऑफ द क्रोमोसोम किंतु तुम जो पोलर न्यूक्लियस रहला पोलर न्यूक्लियस हम कोन होची डिप्लॉयड स्टेट रे होची तो दैट इज कंटेन 2n नंबर ऑफ द क्रोमोसोम तो ए टाइप रो क्वेश्चन आसे क्वेश्चन ओडा का मन रखिबो इला तो डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट जो हम मन एतिकी तो एटा गोटे टाइप इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ए चैप्टर रा तो ए चैप्टर गोटे लॉन्ग क्वेश्चन हम पढ़ले डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट ए चैप्टर आगे इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होची डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट तो तमन का नोट्स पढ़ते देबी नोट्स भल भाबे देखिबा जोटु न बुझि पल्ला डाउट क्लियरिंग जैसे पछाइबा देन तमन का नेक्स्ट कोर्स होय होची नेक्स्ट कोर्स बॉयज और गर्ल्स का पई बॉयज मान का पई नेक्स्ट कोर्स होची 26 गर्ल्स मान का पई नेक्स्ट कोर्स होची 29 ई कोर्स ता मन रखिबा ओके देन डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट भल भाबे प्रैक्टिस करबा तले एटा होती इंपोर्टेंट नोट क्वेश्चन डायग्राम आल्सो मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम मत प्रैक्टिस करबा मु तमन को नोट्स पठे देबी जो न बुझि पारला से तो पछाडबा ओके थैंक यू।